Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are fine. As you know, today we are going to start our new drama. That is the drama written by Shakespeare. It's one of the famous tragedies of Shakespeare. The name of the tragedy is Hamlet. It is a masterpiece work of Shakespeare, and it's one of the greatest dramas in English literature. So we are going to analyze this play. First of all, I will tell you the story of this play. But before telling the story, I would like to tell you something about the characters that are used in this play. There are some major characters. We are going to discuss these characters. Number one character is Clytus. Clytus is the king of Denmark. He is uncle of Hamlet. Hamlet is son to farmer king. He is no more alive because he was murdered or killed naturally, but it's not known. So Hamlet is a son to the farmer king, and he is nephew to the present king of Denmark, that is Clytus. Polonius is the Lord Chamberlain and character of Horatio and Francisco, Marcellus, Bernardo. These characters perform their duties as the watchmen at Elsinore. There is the castle. So they perform their duties there. They are watchmen. We have characters of Voltimand and Cornelius. These are two courtiers. Rosencrantz and Guildenstern. These are also courtiers. And we have some minor characters: gentleman, priest, and Rinaldo, pillars, two clowns, grave diggers. These some minor characters, but major. Ophelia, she is the daughter of Polonius, and she is sister of Laertes. Laertes is the son to Polonius. He lives in France. He also lives in Denmark there. So, character of Gertrude, she is one of the she plays one of the major role in this play. She is queen of Denmark and presently wife of Clytus, but formerly wife of Hamlet, King Hamlet, who was murdered by someone. So we have some major characters: the character of Hamlet, Clytus, Polonius, Horatio, and Ophelia, Gertrude, and Ghost. Ghost is the character of, it is considered, it reflects the character of Hamlet's father. It is also role in this play. It has also role in this play. The character of Ghost performs a major role in this play. So these are some major characters. We are going to start the story of the play. If you see the story, play, this play has 5 acts. In acts, maybe a few scenes, 2 scene, 3, 4, 5, or 8 scene. There may be many scenes in one act. So this a tragedy by Shakespeare is written by Shakespeare, and it has 5 acts. In the very first act and very first scene, where story begins, where drama begins, there is the place Elsinore, city in Denmark. There is the castle. There, Francisco and Bernardo perform their duties as a watchman. It is the winter season, and almost it is the time of midnight, 12 p.m. Francisco's duty is about to be over, and the duty of Bernardo is going to be started. So Bernardo is there, and Francisco is performing his duty with sincerity. When he came nearer to Francisco, he said, "Who is there?" Francisco is surprised to listen that because he was performing his duty as a watchman. He said, "It's my duty to ask question if I see someone close to me because I am performing the duty of a watchman. However, he has asked me the question." So he said, "I'm Francisco." "Okay, I'm Bernardo." They knew each other, recognized each other. Then they say hello, hi, greetings to each other. Then there is there are two characters, Horatio and Marcellus. These two characters also perform their duties at castles there in Elsinore. But these two are discussing, Bernardo and Francisco. Francisco's duty is over now. He is about to leave that place. But before departure, he asked to Bernardo. They discuss that about ghost. Horatio, he said, "You are going, if you see Horatio and Marcellus, please say them come very soon. I am waiting for them because they will also perform their duties with me." He said, "Okay." Again, he said, "Yes, they coming." Horatio and Marcellus are there. They are coming very near to them. When they reached there, they said hello, hi to each other. Then Bernardo asked
Have you seen the same creature, ghost there today? Because they are discussing the character of ghost. This creature has been seen there two times by Bernardo and Francisco. They don't talk to that creature because they are afraid of that, and they don't know why ghost is there. Its ghosts are like other creature, but they are afraid of that. They don't talk to that creature. So they told that story to Horatio. Horatio said, "Okay, first of all, he said, this is not a creature. I don't believe in such type of things, supernatural things, because this is only the illusion of your mind and heart. It cannot be true. A ghost cannot live there." Then Horatio was there. Marcellus was there when time is midnight. It is almost midnight. Then they saw the ghost. There happened appearance of ghost. Horatio himself, when he saw that creature, he just surprised and amazed to see that. He said, "Oh my God, that is." Then they start to talk with each other. Then they said, "Okay, we will try to talk that ghost." But ghost was not willing to tell something to them. He was not willing to talk to them. So just they tried to talk that ghost, but he was not willing. Then Maslow said, "I will forcefully try to stop that ghost because it was going somewhere. I will try to stop that ghost and we will talk." Horatio said, "Okay, we will talk." They tried a lot, but the ghost just indicates, and it didn't talk single word to them. Then they thought there may be. Yes, I have a doubt. Horatio said, "I have a doubt. The appearance of ghost very resemble to uh, former king of Denmark, Hamlet. It may be the form of a king. So we must tell this thing to Hamlet, because Hamlet will recognize properly to that ghost whether this is the this is the ghost of my father or not." उन्होंने कहा, हम और बताएंगे, हेमलेट को बताएंगे कि ये जो घोस्ट है ये आपके फादर की आत्मा से, आपके फादर की शक्ल से रिजेंबल कर रहा है, उसकी आत्मा हो सकती है, क्योंकि उसका तो मर्डर हो गया है, किसी को पता नहीं है कि किसने किया ये वो। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये बात हेमलेट को बताई चाहिए। तो वो जाते हैं बताने के लिए। यहाँ पर फर्स्ट एक्ट बिल्कुल फर्स्ट एक्ट का जो फर्स्ट सीन है हेयर एंड्स अप होता है। उसके बाद किंग ऑफ डेनमार्क, क्वीन, प्रिंस पोलोनियस, लार्टस, अफीलिया, ये सब आ जाती है वहाँ पर पैलेस में, उस महल में, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है हेमलेट की, और ये दुख को मनाने के लिए और मातम करने के लिए, उसकी बातों पे गौर करने के लिए से साहब इकट्ठे हुए हैं सारे और बातचीत कर रही हैं, सब वहाँ पर हैं, वहाँ पर उस कोर्ट में। तो वहाँ पर एक किंग क्लाइडस बड़ी स्पीच डिलीवर करता है, और उस स्पीच में यही कहता है कि कितना बड़ा अजीम था मेरा बड़ा भाई, और उसकी डेथ हो गई पता नहीं कैसे। खैर मरना तो है हर एक इंसान को, लेकिन बड़ा बहादुर था, हमको इसने बचाया था नॉर्वे की फ़ौज से, फोर्टिनब्रास की फ़ौज से हमको बचाया था, सेव किया, ये भी ब्लेसिंग थी हमारे लिए। बहरहाल उसके क्वालिटीज़ जो भी हैं उस पर बात करता है वो। तो वहाँ पर जो लार्टस है वो परमिशन लेता है फ्रांस जाने के लिए उस किंग से, क्लाइडस से। तो क्लाइडस कहता है आप अपने फादर से परमिशन लो, यू कैन गो देयर, आप जा सकते हो। तो वहाँ पर हेमलेट भी बैठा हुआ था, जब सारी बातें चल रही होती हैं तो हेमलेट बिल्कुल खामोश है, ही इज़ वेरी साइलेंट। तो जब क्लाइडस बात करता है हेमलेट से, कहता है तुम क्यों परेशान हो, तुझे क्या हुआ है, तुम ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए और एक बिल्कुल तनहा लग रहे हो, मायूस लग रहे हो, क्यों तुमने ऐसा अपना हाल बनाया है। तो हेमलेट तो कुछ नहीं कहता, उसने कहा हाँ बस छोड़ दो। रानी गर्ट्रूड वो भी कमेंट पास करती है, कहती है मरना जीना तो एक मामूली बात है, हो सकता है, लेकिन तुमने हाल कैसा बनाया है। तो कहता है हाँ बस ये मामूली बात है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। कैसे हो सकती है, मैं अपने फादर का मौत का दुख मैं नहीं भूल सकता और मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन जो इसको दुख हुआ है इसकी मदर पे, इसके अंकल पे, क्योंकि इसके अंकल ने कत्ल किया है या नहीं, ही इज़ नॉट कन्फर्म्ड,
ही डजंट नो। लेकिन जल्दी इसने शादी कर ली अंकल से, ये बात समझ से बाहर है हेमलेट के लिए, ये चीज़ समझ से बाहर है, इसलिए वो परेशान बैठा हुआ है। तो सब चले जाते हैं वहाँ पर, हेमलेट अकेला बैठा हुआ है। अचानक होरेशियो, मार्सलस, बर्नार्डो वहाँ पर आते हैं, सलाम दुआ करते हैं। तो होरेशियो से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो कहता है मैं तो आपके अब्बू की फ्यूनरल के लिए आया था, फ्यूनरल के लिए, उसकी तदफीन के लिए मैं आया था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उसने कहा नहीं, झूठ नहीं बोलो, तुम तदफीन के लिए नहीं आए थे, तुम तो मेरी मदर और अंकल की शादी की रस्म देखने आए थे और बस वही पार्टी अटेंड करने आए थे। तुझे बस तुम इसलिए आए थे कि तुम उसकी पार्टी अटेंड करो। कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये वो। बहरहाल वो कुछ बातचीत करते हैं आपस में। देन हेमलेट आस्क्ड होरेशियो व्हाई ही वाज देयर। कहता है तुम यहाँ पर क्यों हो? सही बात कि मैं फाइनल के लिए आया था। इसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो आए थे पार्टी के लिए। तो अल्टीमेटली वो बताते हैं उस घोस्ट के बारे में हेमलेट को कि हमने एक दिन पहले घोस्ट को देखा था उस शाही किले के करीब। वहाँ पर एक आत्मा, मिडनाइट का टाइम था, वहाँ चल रही थी। तो हमने बात करने की कोशिश की, वो बात भी नहीं कर रही थी। वो आपके अब्बू की शक्ल से रिजेंबल करती है। हो सकता है इट मे बी द स्पिरिट ऑफ योर फादर, आपके फादर की स्पिरिट हो सकती है, आत्मा हो सकती है। तो परेशान हो गया है हेमलेट। इसने कहा क्या ये ऐसा हो सकता है? बरल ये सोचता है, गौर करता है, लेकिन इनको जवाब यही देता है, रिप्लाई देता है कि मैं कल आऊँगा और ख़ुद अपनी आँखों से देखूँगा। देन वी हैव एन अदर सीन नंबर 3। वहाँ पर लार्टस और ऑफिला दोनों एंटर होते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये फ्रांस जाने की कोशिश कर रहा है और तैयारी कर रहा है, फ्रांस जा रहा है। इसने परमिशन भी ले ली है पोलोनियस से और क्लाइडस से। अब यहाँ पर लार्टस बैठा हुआ है और अपनी बहन से बातचीत कर रहा है। तो लार्टस एडवाइस देता है ऑफिलिया को कि मैंने सुना है तुम हेमलेट के करीब जा रही हो, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये अमीर लोग हैं, ये वफ़ा कभी भी नहीं करेंगे, तुमको क्लोज़ नहीं जाना चाहिए इसके करीब। तो ये कहती है हाँ यू आर राइट, आई विल फॉलो योर पॉइंट्स, योर एडवाइस। लेकिन ये थोड़ी कंफ्यूज भी हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि कहता है कि ये शाही ख़ानदान के लोग हैं, ये अमीर लोग हैं और मेंबर फ्रॉम रिच क्लास फैमिली के नॉट बी लॉयल फॉर अस, हमारे लिए इतना लॉयल नहीं हो सकता, तुम थोड़ा सोचो इस बात पे। वहाँ पर पोलोनियस, इसके फादर की भी एंट्री होती है। तो कहता है तुम अभी यहाँ पर हो, गए नहीं फ्रांस? ने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ। तो इसकी सिस्टर कहती है, अफीला कहती है भाई को कि भाई तुम जा रहे हो फ्रांस, लेकिन लेटर को लिखना, हमारे लिए कुछ लिखना, तुम भूल जाते हो, ये बात नहीं अच्छी नहीं है, तुमको नहीं भूलना चाहिए, बल्कि यू शुड राइट समथिंग फॉर अस। उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल लिखूँगा अपनी प्यारी बहन के लिए। तो इसका फादर भी यही एडवाइस देता है, वो तो चला जाता है, यही एडवाइस देता है अफीलिया को कि तुम जो है हेमलेट से थोड़ा दूर रहो, हेमलेट अच्छा बंदा नहीं है और इसके करीब जाने की कोशिश नहीं करो। शी सेड, हाँ पहले तो ये कहती है हाँ बाबा, जब भी वो बात करता है मेरे से तो कसम उठाकर, खुदा की कसम, ये वो, बहरहाल मुझे लगता है कि बिल्कुल सच्चा है, ही इज़ वेरी सिंसियर। कहता है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, यही तो बातें होती है छोटी मछलियों को फंसाने के लिए, इन अमीर लोगों की, नौजवान बॉयज़ की यही तो हरकतें होती हैं छोटी मछलियों को फंसाने के लिए। बहरहाल स्टोरी आगे जाती है और वहाँ पर सीन 4 में होरेशियो, मार्सलस और हेमलेट तीनों एंटर होते हैं उस कासल में, उस शाही किले में। वहाँ पर वो देखने के लिए, गोश्त देखने के लिए। तो वो बैठे हुए हैं वहाँ पर। अचानक होरेशियो कहता है कि दैट इज़ गोश्ट देयर, इसने कुछ देखा। तो हेमलेट रिक्वेस्ट करता है इसको बात करने के लिए। अब हेमलेट ने देखा उस गोश्ट को, लेकिन क्लियरली नहीं देखा। ही ट्राइज टू टॉक टू दैट स्पिरिचुअल, दैट स्पिरिट। तो गोश्ट जो है वो बिल्कुल भी बात नहीं करती, बल्कि थोड़ी अवॉइड करती है बात करने से। वी डोंट नो वाई। तो गोश्ट वहाँ पर ही मौजूद थी, हेमलेट ने फॉलो किया, उसने इशारा किया, गोश्ट ने इशारा किया। तो होरेशियो ने कहा मे बी गोश्ट इज़ कॉलिंग टू यू, हेमलेट को इसने कहा। तो हेमलेट उसको फॉलो कर रहा है। वो कहते हैं कि आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक अजीब मखलूक है, हमने कभी नहीं देखा, हो सकता है ख़तरनाक साबित हो हमारे लिए। अगेन इज़ ट्राइंग टू फॉलो दैट इज़ बर्ड। तो
फॉलो करके चला जाता है। सीन 5 आता है, वहाँ पर हेमलेट गोस्ट दोनों वापस आते हैं। बड़ी बातें करने के बाद गोस्ट ने इसको कहा कि मुझे रहम खानी चाहिए, आपको रहम खानी चाहिए मुझ पर, क्योंकि आई एम द स्पर्ट ऑफ योर फादर, मैं जो हूँ आपके बस तुम्हारे फादर की एक आत्मा हूँ, और मुझे मेरे रूह को शांति कभी भी नहीं मिलेगी जब तक तुम रिवेंज नहीं लोगे। तुमको रिवेंज लेना चाहिए मेरे कत्ल का, क्योंकि आई हैव बीन मर्डर्ड बाय योर अंकल क्लाइडस, मुझको मार दिया इसने, क्लाइडस ने मारा है, तो आपको रिवेंज लेना चाहिए। तो ये कहकर घोस्ट तो डिसअपियर हो जाता है। मार्सलस और रेशियो दोनों वो उसके बाद पूछते हैं हेमलेट से कि बताओ क्या कहा घोस्ट ने तुमको। पहले तो ये थोड़ा घबराता है, कहने की कोशिश करता है, लेकिन हेमलेट कहता है मैं एक कंडीशन पे आपको बताऊंगा, अगर ये बात तुम किसी को नहीं बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बताएंगे, अपने प्यारे दोस्त की बात थोड़ी बताएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे बात, आप कह सकते हैं। तो इसने अपना जो सारा एक्सपीरियंस घोस्ट के साथ हुआ था वो इसने बता दिया कि किसकी थी, क्या कह रही थी, क्या नहीं कह रही थी, इसने सब कुछ बता दिया वहाँ पर। अब दूसरा एक्ट शुरू हो रहा है जिसका सीन 1 है। यहाँ पर थोड़ी मुख्तसर कन्वर्सेशन होती है पोलोनियस और रेनाल्डो के बीच बातचीत होती है। वहाँ पर अफिलिया भी आती है। जब अफिलिया आती है तो रेनाल्डो चला जाता है वहाँ से। तो वो कंप्लेंट करती है हेमलेट को, क्योंकि इसको एडवाइस दी गई है अपने फादर की तरफ से, ब्रदर की तरफ से एडवाइस मिली है कि तुमको हेमलेट से दूरी करनी चाहिए। तो हेमलेट को कंप्लेंट करती है, मतलब कुछ ऐसी बातें करती है जो हेमलेट को पता चले कि शी डजंट लव हिम। तो यही कंप्लेंट करती है हेमलेट को। पोलोनियस इज़ एग्रेसिव एंड दे बोथ यस। जब हेमलेट को कंप्लेंट करती है, क्योंकि वहाँ पर जो हुआ था सीन एक होता है, हेमलेट वहाँ पर अफिलिया बैठी हुई होती है, कपड़ों की सिलाई का काम कर रही होती है, शी इज़ वीविंग द क्लॉथ्स देयर केम हेमलेट। वहाँ पर आते ही इसको कुछ कहता है, पता नहीं एक अजीब सा लग रहा होता है, और पागलपन का नाटक कर रहा है या पागल हो चुका है किसी के प्यार में या उस दुख में। घोस्ट ने जो कुछ कहा इसको उस दुख में, हाउएवर ही इज़ वेरी मेड, बिल्कुल पागल हो चुका है, पागलों की तरह जो है हरकतें कर रहा है। ये अफिलिया ने अपने फादर को भी बताया था। तो पोलोनियस ने कहा ये तो बात का ठीक नहीं है, अगर वो हेमलेट आपके साथ इसने ये हरकतें की कि उसने कहा मैं सिलाई का काम कर रही थी वहाँ रूम में, तो वहाँ पर आया, मेरा हाथ पकड़ कर अपने सर पे रखता है, कहता है मैं बिल्कुल वफादार हूँ, ऐसा नहीं हो सकता जो कुछ आप सुन रही हो ये वो, और सितारे झूठे हो सकते हैं, आप आग के शोले समझ सकती हैं इनको, ये धोखा हो सकता है, झूठे हो सकते हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी भी झूठी नहीं हो सकती। बहरहाल ये थोड़ा पागलपन का अमल करता है, ड्रामाबाजी करता है ये वो। तो पोलोनियस को बताया अफिलिया ने, तो अफिलिया और पोलोनियस दोनों कहते हैं कि हमको ये बात बादशाह को बतानी चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। हेमलेट अगर पागल हो चुका है तो बड़ी बात है, और हम बादशाह को ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद क्लाइडस, गर्ट्रूड, रोज़ेनक्रेट्स और गल्डनस्टेन्स वहाँ पर हैं सीन 2 में। वहाँ पर क्लाइडस कहता है कि ही हैज़ कॉल्ड टू यू टू टेल अबाउट द मैडनेस ऑफ हेमलेट। इसने सबको बुलाया है इसलिए कि वह उनको बता सके हेमलेट के पागलपन के बारे में, उसकी मैडनेस के बारे में, क्योंकि इसको भी पता चल गया है हेमलेट थोड़ा सा पागल हो चुका है। पता नहीं क्यों, रीज़न क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन वो थोड़ा पागल हो चुका है। और जब भी कोई अमल करता है तो इंसान को लगता है कि एक अजीब सा, मतलब जो जैसे पागल आदमी करते हैं बस वही हरकतें कर रहा है। तो वहाँ पर उनको हेमलेट की मैडनेस के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि आप रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करो। वहाँ पर पोलोनियस भी आता है, वो भी कंप्लेंट करता है अबाउट हेमलेट। कहता है कि हेमलेट ने जो बर्ताव किया है, इसके साथ जो बिहेव किया है अफिलिया के साथ, ये भी बिल्कुल थोड़ा अजीब सा था और पागलों जैसा था। तो अब सब परेशान हैं कि क्या करना चाहिए, क्यों ये पागल बन चुका है, इसकी मैडनेस के पीछे रीज़न क्या है, नोबडी इज़ क्लियर। तो हेमलेट जो अपोलोनियस और क्लाइडस कहते हैं क्यों ना एक मीटिंग फिक्स की जाए
हेमलेट के साथ अफीलिया की। जब दोनों आपस में बातचीत करेंगे, हम कर्टन के पीछे छुप के बैठे रहेंगे और सुनेंगे कि रीज़न क्या हो सकते हैं। तो क्योंकि इनको यही सोच है कि हमने अफीलिया को थोड़ा दूर कर दिया है हेमलेट से, ये भी रीज़न हो सकता है कि इसके मोहब्बत में ये पागल हो चुका हो। बट दिस इज़ नॉट कन्फर्म, दिस इज़ नॉट क्लियर। तो वहाँ पर हेमलेट की एंट्री होती है, वो सारे छुप जाते हैं कर्टन के पीछे। वहाँ पर पोलियस जो है खड़ा है और वो भी हेलो हाय करता है हेमलेट से। तो हेमलेट उसको कहता है कि काश तुम ईमानदार होते। कहता है मैं ईमानदार नहीं हूँ। उसने कहा नहीं, तुम ईमानदार नहीं हो। ये बहुत कंप्लेंट्स करता है अबाउट हिज लाइफ, अबाउट द पीपल, जो किंग हैं, क्वींस हैं, या जितने भी लोग हैं उनके बारे में ये बस उनकी बुराई करता है। कहता है कि लोग अच्छे नहीं हैं, खुदा ने दुनिया तो अच्छी बनाई है लेकिन ये जो काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत हैं और ये ठीक नहीं है और बादशाह होने के लायक भी नहीं है ये लोग। बहरहाल हेमलेट जो है उसके बाद अब इसको कंफर्म नहीं है कि घोस्ट सच्चा है या नहीं। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो एक ड्रामा पेश करता है और उस ड्रामे के लिए कुछ एक्टर्स को बुलाता है। दिस प्ले इज़ कॉल्ड प्ले विद इन प्ले, क्योंकि इस ड्रामा के अंदर एक और ड्रामा भी पेश किया जाता है। वो रिलेट करता है इस सेम प्ले से। उसमें एक किंग का करेक्टर है, क्वीन का करेक्टर है, वहाँ पर दूसरा भी इसका किंग का भाई है, वो कत्ल कर देता है। कातिल जो है क्वीन के साथ बैठ जाता है। यही सीन होता है बिल्कुल सेम। ये देखने के लिए कि जब हम ये ड्रामा करेंगे, जब हेमलेट ये क्लाइडस देखेगा तो इसका रिएक्शन क्या है, उसके रिएक्शन से हमें पता चल जाएगा कि ही इज़ रियल मर्डरर ऑफ माय फादर और नॉट। तो ये ड्रामा करने के लिए कुछ एक्टर्स को बुलाते हैं और उसके बाद दूसरा सीन शुरू हो रहा है। गर्ट्रूड, क्लाइडस, अफीलिया, रोजन एंड गल्डन आर देयर टॉकिंग अबाउट हेमलेट। सब हेमलेट के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों पागल हो चुका है, क्या रीज़न हो सकता है, सब इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर एंट्री होती है हेमलेट की। किंग पोलोनियस खुद छुप जाता है वहाँ पर। तो हेमलेट स्टार्ट्स टू टेल हिज स्टोरी ऑफ सैडनेस। वहाँ पर अफीलिया बैठी हुई है, क्योंकि पहले ही मिलाना चाहते थे, मीटिंग करवाना चाहते थे अफीलिया की और हेमलेट की। तो वहाँ पर वो छुप गया और अफीलिया वहाँ पर आई। तो अफीलिया कहती है कि मैं आपके गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगी, आई विल नॉट एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स बिकॉज आई डोंट वांट। क्योंकि इसके अब्बू ने एडवाइस दी है, ब्रदर ने भी एडवाइस दी है कि तुमको दूर रहना चाहिए हेमलेट से। अब जितने भी गिफ्ट थे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही, वापस देना चाहती है। ये भी दुख हो रहा है इसको। बहरहाल ये बहुत कुछ कहता है इसको, अफीलिया को, कि तुम सच्ची नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी तो दहेज में मैं आपको सिर्फ एक बद्दुआ दूंगा। इस सवाल ऐसे कुछ फ़िलासफ़िकल बातें करता है, लव के बारे में, लाइफ के बारे में। तो वो सुन रहा है, पोलोनियस सुन रहा है वहाँ पर। देन हेमलेट, नेक्स्ट सीन में हेमलेट एंड सम एक्टर्स आर देयर। हेमलेट हैज़ इनवाइटेड टू क्लाइडस टू वॉच दैट ड्रामा। अब ड्रामा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं सब, स्पेशली हेमलेट। इसने इनवाइट दिया है क्लाइडस को, पोलोनियस को, गर्ट्रूड को, सबको इसने इनवाइट दिया है कि आओ और वो मेरा ड्रामा देखो। क्योंकि क्लाइडस, गर्ट्रूड सब जो है वो खुश देखना चाहते हैं हेमलेट को। वो क्यों पागल हो चुका है, इस पागलपन में अगर वो इंटरटेन होता है किसी ड्रामा से, किसी मूवी से या जिस अमल से, तो उसमें उनकी खुशी है। वो कहते हैं हाँ हम बिल्कुल आएंगे और आपका ये ड्रामा ज़रूर देखेंगे। तो ड्रामा शुरू होने से पहले ये हुक्म देता है होरेशो को, कमांड करता है हेमलेट कि तुमको चौकस रहना चाहिए, अटेंटिवली आप देखना। जब मर्डर का सीन आए ख़ास तौर पे उस टाइम देखना क्लाइडस का फेस और इसके फेस का रिएक्शन या तासीर क्या है। तो मैं भी देखूंगा लेकिन आपको भी देखना चाहिए। एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ से आपको बादशाह नहीं देख पाए लेकिन आप बादशाह को, किंग को गौर से देखो। तो ये बिल्कुल कहता है कि हेमलेट मैं ये परफॉर्म करूँगा ड्यूटी, डोंट वरी। तो उसके बाद परफॉर्मेंस शुरू होती है। नाउ ऑल आर देयर वेटिंग टू वॉच ड्रामा। क्वीन सेड टू हेमलेट। अब ड्रामा होने से पहले क्वीन ने इसको कहा कि तुम आओ मेरे साथ बैठो मेरा लगते जिगर। तो कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, आई विल नॉट सिट विथ यू बट आई विल सिट टू द गर्ल दैट इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन यू। मैं उस दूसरे के साथ बैठूंगा जो आपसे ज़्यादा कुछ चमकती चीज़ है।
तो खैर अफिलिया के साथ बैठ जाता है वहाँ पर ड्रामा देखने के लिए। ये दोनों नॉर्मली बातचीत करते हैं आपस में। तो वहाँ पर वेरी फर्स्ट सीन में ये होता है, वहाँ पर किंग और क्वीन का इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दोनों करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब वो क्वीन वहाँ पर आती है स्टेज पे, उस बादशाह से मिलती है, तो एक एक्टर है जो वहाँ से दौड़ कर आता है और बादशाह के कान में पॉइजन डाल के चला जाता है। तो किंग की डेथ हो जाती है स्टेज पर। अब ये ड्रामा चल रहा है उसके अंदर, ये सब देख रही हैं, किंग क्लाइडस, गर्ट्रूड, अफिलिया, पोलोनियस, हैमलेट सब देख रही हैं, और रेशियो। तो जब पॉइजन उसके कान में डाला गया तो उसकी तो डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो वो चला रही है क्वीन वहाँ पर। तो कुछ ही देर में वही इंसान, वही एक्टर जिसने जहर डाला था उसके कान में, वही क्वीन के साथ बैठा हुआ है, कहता है हाँ बिल्कुल गलत हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बादशाह के साथ बिल्कुल ये बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल वो खुद ही उसकी जो है उसका अपना बनकर वहाँ पर बैठा हुआ है और कहता है कि ये गलत हुआ, ये वो कातली। तो क्लाइडस को थोड़ा अजीब लग रहा है, कहता है कि ऐसे सीन, ऐसी हरकतें, ऐसे सीन हो रही हैं इस ड्रामा में, बिल्कुल रिजेंबल कर रहे हैं, क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दीज सीन्स इन दिस प्ले। ही इज़ वरीड, ही इज़ थिंकिंग। तो खैर वहाँ पर एक मर्डर का सीन आता है। जब मर्डर का सीन आता है तो ये उठकर चला जाता है क्लाइडस। जब चला जाता है वहाँ से तो अफिलिया कहती है बादशाह जा रहा है। हैमलेट कहता है जाने दो इसे, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। होरेशो जब आया वापस, इसने यही बात बताई कि हैमलेट आप बिल्कुल सही थे, ठीक थे, यू आर राइट, क्योंकि मैंने भी वही देखा, इसके फेस के तासीर को देख के मैं यही कह सकता हूँ कातिल हो सकता है। तो इसको अब कंफर्म हो गया कि ही इज़ द किलर ऑफ माय फादर, मेरे फादर को इसने ही मारा है और मेरी मदर से इसने शादी कर ली ब्लैक मेल करके इसको। तो अब इसको तो कंफर्म हो गया। अब हैमलेट जो है परेशान है, बहुत परेशान है, अब क्या करें। तो अब नेक्स्ट सीन में पोलोनियस सेड टू क्वीन आई विल सिट बिहाइंड अ कर्टेन टू लिसन टू यू। उसके बाद वो तो ड्रामा ख़त्म हो गया, सब चले गए। हैमलेट परेशान है बहुत, क्लाइडस भी परेशान है, क्योंकि इसे जो कुछ ये देख रहा है इसके लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो पोलोनियस कहता है क्वीन को कि अफिलिया के साथ हमने बात करवाई, अब तुम भी बात करो, तुम मदर हो इसकी, हो सकता है कि आपको बता दे रीज़न इसके पागलपन का क्या हो सकता है, मैं सुनूंगा, पर्दे के पीछे बैठकर मैं सुनूंगा आपको। तो कहती है ठीक है। तो वहाँ पर किंग इज़ अलोन देयर इन वर्शिप टू गॉड। उसने तो मीटिंग फिक्स कर ली, ठीक है हम यही करेंगे नेक्स्ट सीन में, या बिल्कुल यही होगा। तो उसके बाद क्लाइडस जो है थोड़ा परेशान है और अकेला बैठा हुआ है महल में, सोच रहा है और इबादत कर रहा है कि मैंने गलती की, मेरे बड़े भाई को कत्ल कर दिया, ख़ुद के साथ बोल रहा है और कह रहा है वहाँ पर कोई नहीं है, तो कह रहा है कि मैंने गलत किया, ये वो, अब खुदा माफ़ नहीं मुझे करेगा, मैं माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ लेकिन मांग रहा हूँ, मतलब ये ऐसी बातें करता है वहाँ पर। तो हैमलेट भी वहाँ पर है, हैमलेट आ जाता है वहाँ पर, कहता है इसको तो अब कंफर्म हो गया, ही ट्राइज़ टू किल हिम देयर, वहाँ पर मारने की इसने कोशिश की। फिर सोचता है अगर मैंने मार दिया इसको, ये तो इबादत कर रहा है और माफ़ी मांग रहा है खुदा से। जो इंसान माफ़ी मांगने के दौरान या इबादत के दौरान जिसको मारा जाता है, हो सकता है कि वो कितना भी गुनाहगार हो, कितना भी सिंफुल हो, गिल्टी हो, क्रिमिनल हो, वो तो हेवन में चला जाएगा, पैराडाइज में चला जाएगा। जबकि इसने तो बहुत पाप किए हैं, मेरे फादर को कत्ल किया है, इसको नर्क में जाना चाहिए, हेल में जाना चाहिए, हेवन में नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं कत्ल करता, छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट टाइम देखूँगा। तो यही सोच इसके माइंड में आती है कि अब मैं क्या करूँ। बिल्कुल ये परेशान लग रहा है, इसने नहीं मारा, इसने छोड़ दिया वहाँ पर क्लाइडस को। अगले सीन में गर्ट्रूड पोलोनियस वहाँ पर जो है वहाँ पर महल में है। तो क्वीन वांट्स टू नो व्हाई ही इज़ मेड। अब वो पागलपन की जो ड्रामा कर रहा है, सारी बातों को कंफर्म करने के लिए, रीज़न इनका जानने के लिए वहाँ पर मौजूद है। और कर्टेन के पीछे पोलोनियस बैठा हुआ है। पोलोनियस जो है वो भी सोच रहा है कि पता नहीं क्या होगा। तो वहाँ पर हैमलेट की एंट्री होती है। हैमलेट मदर के साथ बातचीत करता है, क्रिटिसाइज़ करता है मदर को, क्लाइडस को भी करता है। तो क्लाइडस पे क्रिटिसाइज़ करता है, मदर पे करता है, कहता है तुमको नहीं करना चाहिए था ये वो, मेरे फादर की डेथ हो गई, आपने जल्दी शादी कर ली, दिस इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है, आपने जल्दी शादी कर ली, तुमको इतनी ज़रूरत थी, तुम
जो है तो ज़रूरत थी इंसान की, तुमने जल्दी शादी कर ली, और अगर ज़रूरत थी तो आपने अंकल के साथ क्यों शादी की, क्लाइडस से क्यों, ये लायक है किंग होने के लिए, हस्बैंड होने के लिए, बिल्कुल एक नॉनसेंस है, ये इंसान नहीं हो सकता। मतलब तनकीद करता है सब पे, स्पेशली क्लाइडस पर और गर्ट्रूड पे। तो और बातों बातों में ये बता देता है कि ही इज़ द किलर ऑफ माई फादर, क्लाइडस जो है वो किलर है, मैं इसको मार दूंगा। तो ये भी परेशान रह जाती है। अब इसको भी पता चल गया, हेमलेट जो है मैं एक परेशान सा लग रहा है, पागल सा लग रहा है इस वजह से। तो ये सोच रही है कि अब क्या करना चाहिए। बहरहाल बहुत दुख होता है इसको। तो बातों बातों में जो इसको कहती है, गर्ट्रूड कहती है, हाँ अगर मैं गलत हूँ तो मुझे मार दो, हाँ मार दो। हेमलेट तो वहाँ पर ही खड़ा था, मार नहीं रहा था इसको। तो कहती है हाँ हेल्प 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 मी, बचाओ मुझे। तो पोलोनियस जो वहाँ छुपा पड़ा था, इसने कहा हो सकता है रियली हेमलेट इसको मार रहा है। तो इसने कहा कौन जी, आ रहा हूँ। जब जैसे ही बाहर निकला, बाहर नहीं निकला, वहाँ पर ही था। तो हेमलेट ने सोचा कि क्लाइडस हो सकता है इस पर्दे के पीछे। इसने जैसे अपने तलवार को घुसाया, उसमें उसकी डेथ हो गई, उस तलवार से, स्वॉर्ड से उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। तो तब वो दोनों परेशान हो गए। हेमलेट को तब पता चला कि ये पोलोनियस है, क्लाइडस नहीं है। जबकि गर्ट्रूड ने कहा अब क्या होगा, आपने तो कत्ल कर दिया इसको। तो कहता है कुछ नहीं, बस इसका मौत मेरे हाथों से होना था, वो हो गया। तो उस मर्डर डेड बॉडी को छुपाने की कोशिश करता है, दूसरे कमरे में ले जाता है, वहाँ फेंक देता है। वहाँ पर गर्ट्रूड खड़ी है। गर्ट्रूड को कहता है तुम ये सारी बातें क्लाइडस को नहीं बताना, यही बस मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं बताना। वहाँ पर घोस्ट की अपीयरेंस होती है। तो घोस्ट कहता है तुम तुम्हारी मदर को इतना जो है परेशान नहीं करो, इतना मायूस नहीं करो, क्योंकि जो कुछ आपने कहा है इसको, वो बिल्कुल अब हार्ट ब्रोकन बन चुकी है, मायूस हो चुकी है। तो मदर को कहता है उसको रियलाइज़ करवाने के, मदर कुछ नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा था, डोंट वरी, मैं आपका बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं है। तो मतलब उसको रीस्टोर करने की कोशिश करता है, उस अगली हालत में लाने के लिए वो बिल्कुल ऐसे कुछ एक्शंस करता है। तो नेक्स्ट सीन में क्लाइडस गर्ट्रूड टॉक अबाउट हेमलेट। क्लाइडस और गर्ट्रूड वो दोनों हेमलेट के बारे में बातचीत करते हैं कि हाँ उसकी कत्ल हो गई। अगर क्लाइडस कहता है अगर मैं इसकी जगह पर होता, पोलोनियस की जगह पर, तो इससे वो तो मुझे भी मार देता। अब हेमलेट का जो है बिल्कुल कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, कुछ करना चाहिए इसके बारे में। तो दोनों सोचते हैं क्योंकि इसको क्यों ना इसको इंग्लैंड भेजा चाहिए, हम भेज देते हैं इसको इंग्लैंड, और वहाँ पर रहेगा। यहाँ पर अगर रहेगा तो हो सकता है इसको सज़ा मिले, और मैं किंग हूँ, अगर सज़ा नहीं दूंगा आवाम मुझसे पूछेगी। और दूसरी बात ये कि अगर लाइटस को पता चल गया, इसके पोलोनियस के बेटे को पता चल गया, हो सकता है ये रिवेंज ले। ये है बिल्कुल वो रेडी है, जो है सॉरी लाइटस रेडी है। जब इसको पता चला कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई है, तो वो रिवेंज लेने के लिए फ्रांस से वापस आ रहा है। अब उन्होंने तो सोच लिया इसको इंग्लैंड भेज देते हैं। हेमलेट वहाँ पर महल में मौजूद है, ही इज़ मेकिंग फन टू देम ऑफ देम, क्योंकि जब वो पूछते हैं कि आपने डेड बॉडी को कहाँ छुपाया है, कहाँ पर, इसने कहा वो गेम खेलने गया है, वो वहाँ पर खड़ी है, बाथरूम में पड़ी है, ये वो कुछ फ़न बनाता है, मतलब सीरियस नहीं लेता, एक पागल आदमी जैसे वो बिहेव करता है। तो क्लाइडस को फिर भी गुस्सा आता है, कहता है इसका तो बस अब इसको भेजना चाहिए इंग्लैंड। फोर्टिनब्रास जो नॉर्वे का राजा है, वो भी तैयारी कर रहा है अटैक करने के लिए इंग्लैंड पर। वो फैसला करते हैं कि रोजेनक्राट्स और गोल्डन स्टेन्स दोनों इसके साथ भेजें। हाँ, लार्टिस जब इसने सुना अपने फादर के मर्डर के बारे में, वो भी वापस आ रहा है फ्रांस से रिवेंज लेने के लिए। और जब अफीलिया ने सुना, वो तो बिल्कुल पागल हो चुकी है इसके डेथ की में। जब इसके फादर की डेथ हुई तो इसको पता चला, तो अफीलिया तो बेचारी बिल्कुल पागल हो चुकी है। शी इज़ वेरी मेड एंड सैड बिकॉज ऑफ हिज फादर्स डेथ। तो ऐसे ख़ुद कलामी करती हुई, गुनगुनाती हुई, दुख के गाने, सॉन्ग्स वगैरह गाती हुई एक दरख्त पे चढ़ जाती है, वहाँ पे नीचे गिरती है, वो डूब कर मर जाती है। लोग कहते हैं इसने सुसाइड किया, ये वो, बहरहाल उनको क्लियरिटी नहीं है, लेकिन डूब कर वो मर गई। लाइटस ने जब सुना कि मेरी बहन भी इस दुनिया में नहीं रही, उसकी भी डेथ हो गई है, और तो ये बिल्कुल अब मुंतज़िर है कि मुझे तो रिवेंज लेना ही चाहिए अफीलिया
के मौत का सबब कौन हो सकता है, पोलोनियस का मर्डरर कौन हो सकता है, ये जानने के लिए बिल्कुल एक एंग्शियस है, मुंतज़र है और सोचता है कि बस मुझे तो इमेज लेना ही है। क्लाइडस इस बात में इसको सपोर्ट करता है। क्लाइडस पहले तो इसने नहीं बताया कि किसने कत्ल किया पोलोनियस को, ये वो बात छुपाता है। जब इसने कहा इनडायरेक्टली कुछ बताता है कि यही कत्ल सेम हो सकता है, जो कातिल मेरा भी हो सकता है, फलां का हो सकता है, ओफिलिया का हो सकता है, वो आपके अबू का भी हो सकता है, ये वो। बहरहाल अल्टीमेटली इसने बता ही दिया कि हेमलेट ने कत्ल किया था आपके फादर को। तो जब इसने ये बात सुनी, ये भी बिल्कुल परेशान रह गया कि मुझे तो अब रिवेंज लेना ही है। खैर वहाँ पर अफिलिया की फनल पे आते हैं, हेमलेट भी वहाँ पर आता है, सोचता है कि उसकी मोहब्बत के बारे में, लव के बारे में सोचता है, ये वो मुझसे शादी कर लेती, हम शादी कर देते और जो है एक ऐसी ज़िंदगी होती है वो। बहरहाल अपनी माजी को जानता है, याद करता है, सोचता है उसके बारे में। अगले सीन में उसकी फनरल के लिए वहाँ पर ग्रेव डिगर्स आते हैं, देयर आर टू जोकर्स, वो मजाक उड़ाते हैं और एंटरटेन होते हैं और फिलोसॉफिकली कुछ बातें करते हैं। वहाँ पर प्रीस्ट भी मौजूद है। उनका थीम यही है कि अब अगर इसने सुसाइड किया है तो हम अपनी क्रिश्चियन बिलीफ की बुनियाद पर रिलीजन की जो प्रैक्टिसेस हैं या जितने भी हैं अहकामात हैं उनके मुताबिक हम तो इसकी तदफीन नहीं करेंगे अगर इसने सुसाइड किया है। तो अगर नेचुरल डेथ में चली गई है तो हम इसको दफन कर देंगे। खैर इस चीज़ पे वो डिबेट करते हैं। वहाँ पर ये सब बैठे हुए हैं, ये हेमलेट भी था। फाइनल के बाद जो है लार्टिस और हेमलेट दोनों की फ़ाइट होती है आपस में, लेकिन वहाँ पर तो फ़ाइट नहीं होने देते। वहाँ पर क्लाइडस था, गटरूड थी, वो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं तुम आपस में नहीं लड़ो। अगले सीन में यही होता है, हेमलेट और होरेशियो की कुछ बातचीत होती है, क्योंकि हेमलेट बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी से कि अब मैं क्या करूं। एक जगह एक जो है यही बात कि मेरे फादर को कत्ल किया गया, मेरे अंकल ने किया, इसने शादी जल्दी कर ली। घोस्ट उसने कहा कि अगर तुम रिवेंज नहीं लोगे तो मेरे रूह को शांति नहीं मिलेगी, मैं ऐसे ही जो है चलता रहूँगा, तुमको रिवेंज लाजमी लेना चाहिए। अब अफिला छोड़कर चली गई इसको, ये इतना परेशान, अब क्या करे। क्लाइडस भी बहुत परेशान है। खैर उसके बारे में होरेशियो को भी कुछ बताता है, लार्टिस को भी बताता है ये बात। देन किंग हैज़ डिक्लेयर्ड दैट लार्टिस एंड हेमलेट विल फाइट टू ईच अदर, वो दोनों आपस में लड़ेंगे। इसने बता दिया, इसको अनाउंस कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली इसको पता चल गया हेमलेट इज़ द किलर ऑफ माई फादर। इसे लार्टिस को पता चल गया कि पोलोनियस को कत्ल किया है हेमलेट ने। तो वो सोचते हैं कि क्यों नहीं आपस की इन दोनों की लड़ाई करवा के दोनों को मार दें। ये क्लाइडस की बड़ी चाल है, इसने एक प्लान बनाया हुआ है कि हम दोनों की लड़ाई करवाएंगे और जो लार्टिस है इसकी तलवार पे हम जहर लगाएंगे, पॉइजन लगाएंगे, तो जैसे ही घायल करेगी उसको हेमलेट को तो हेमलेट मर जाएगा। अगर इससे बच गया तो इसने दूसरा प्लान ये बना के रखा है कि हम शरबत पिलाएंगे, उस शरबत में जो है क्लाइडस ने जहर डाल दिया है, तो इस पॉइज़न में हेमलेट मर जाएगा। ये दोनों इसके जो हैं प्लान हैं। लेकिन उस फाइटिंग के दौरान क्या होता है, सबसे पहले तो हेमलेट घायल हो जाता है, लार्टिस की जो तलवार है वो हेमलेट को लग जाती है, सॉरी है उसको लार्टिस को लग जाती है। लेकिन दोनों की एक्सचेंज होती है उस फाइटिंग में, लार्टिस की और हेमलेट की जो तलवारें हैं वो एक्सचेंज हो जाती है। जब एक्सचेंज हो जाती है, घायल कर देता है हेमलेट लार्टिस को, तो उस पर तो जहर लगा हुआ था, जहर लगा हुआ तो बिल्कुल उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। बादशाह हैरान रह गया, क्यों ज़ख्मी तो हेमलेट भी था लेकिन जहर वाली तलवार से ये नहीं घायल हुआ था। तो वहाँ पर गर्ट्रूड क्या करती है, उस शरबत जो पड़ी हुई थी वो खुद पी लेती है। जब शरबत का गिलास इसने पी लिया तो वहाँ पर उसमें तो वो पॉइज़न थी, इसकी भी डेथ हो गई है। अब हेमलेट को पता चल गया तो हेमलेट को गुस्सा आया अपने अंकल पर कि ऐसा क्यों, सब कुछ इसने किया है, हमारी बर्बादी का मेन जो रीज़न है बस यही है। इसने क्लाइडस को वहाँ पर ख़त्म कर दिया, इसको भी मार दिया इसने। वहाँ पर सब मरे हुए हैं, पोलोनियस भी मर गया, अफिलिया भी मर गई, लार्टिस भी मर गया, गर्ट्रूड भी मर गई, क्लाइडस भी मर गया, हेमलेट भी मर गया। ट्रेजडी जो इसकी एंड हुई ना, एक ऐसी हुई जो सब मर गई है। वहाँ पर फॉर्टिनब्रास, नॉर्वे का राजा आता है,
क्या देखता है कि सारे सोए पड़े हैं कि अब मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जिस चीज़ के लिए आया अटैक करने के लिए, वहाँ पर तो कोई भी नहीं। होरेशियो ने सारी स्टोरी इसको बता दी कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो इसने कहा तो हैमलेट तो बड़ा बहादुर सिपाही निकला, क्यों ना हैमलेट की बॉडी उठाकर और इसको सलामी पेश की जाए। तो वो उठाते हैं, सलामी पेश करते हैं, बड़ी इज्जत के साथ दफन किया जाता है और उठाया जाता है इसके लाश को। ट्रेजिक एंड होती है वहाँ पर, एक ऐसी एंड जो सबको हैरान कर देती है। अब कुछ सीन ऐसे हैं जिसके हम एनालिसिस करेंगे, थीम्स की एनालिसिस करेंगे, सिंबलिज्म की एनालिसिस करेंगे, और सारा प्ले जो है ना हैमलेट का, उसमें हर एक चीज़ को हम एनालिसिस करेंगे, सेपरेट करके उसको देखेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्रिटिकली हम उस पर बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।